so that you're clear with it. So कोशिश करना understand करने की question, right? Okay, sir. Just try to Thank understand you. it. All right, guys, everyone, time's up, please. Okay. Yesterday's lecture was extremely important, right? I hope no one would have actually missed the lecture. बहुत important is the कल का, ठीक है? Where I discussed about the experimental design, right? And then you can see now in this question that we have asked you about the experimental design, right? If you can see the question, it says that E150A and E155 are both brown food colorings, right? Plan an investigation to find whether brown food coloring in a soft drink is E150A or E155. And the food colorings are both soluble in water. मतलब है कि वो कह रहे हैं कि आप water solvent ले सकते हैं. You are provided with the solutions of E150A, E155, and the brown food coloring from the soft drink. Soft drink से brown जो color लिया उसने, एक उसने E155 लिया, एक उसने E150A लिया. You also have access to the apparatus normally found in the school laboratory. You should draw a label diagram with your plan and include essential practical details. I think it's straight away chromatography, right? We have to find out कि वो जो brown जो solution वो जो रंग है brown color का soft drink का वो E150A की E155 है. So I think that you'll be using the whole apparatus with chromatography. You should draw a label diagram. So it means that कल के सवाल में था you may draw. अब वहां पे आपकी मर्जी थी बनाना है बनाए नहीं बनाना ना बनाए, it's okay, हम मार्क्स नहीं काटेंगे. यहाँ पे you should draw, so it means you have to draw it, right? So of course we take a filter paper. You'll draw a baseline. Water solvent और ये solvent level. I mean, that's how you'll draw with the apparatus. फिर आप यहाँ पे three dots लगेंगे ना, three dots basically, right? एक होगा E150A का, ये होगा E150A, ये होगा E155, right? And brown food coloring जो कि आपने सॉफ्ट ड्रिंक से ली है, और ये ब्राउन फूड कलरिंग. और सारी बातें सबसे ऊपर आएगा. आपने इसके लिए एक्स नहीं यूज करना था सर? अभी तो सिंस हमने की नहीं क्रोमेटोग्राफी ना, बेसिकली अभी तो हमने स्टार्ट किया है. वो जब हो जाए क्रोमेटोग्राफी फिर हम वो एक्स यूज कर सकते हैं. अभी तो वी आर जस्ट स्टार्टिंग इट. हम इसकी मूवमेंट दिखाएंगे नहीं ना. ओके, राइट. सॉरी, आज मेरा इसका कनेक्टर आई हैव एक्चुअली फॉरगॉटन इन माय ऑफिस. आई एम यूजिंग सम अदर कनेक्टर. ये बार-बार इशू कर रहा है. Okay, now everyone please, ये आपका apparatus है, right? And this is of course filter paper. If you can just a moment, guys. Just a moment, everyone.
Okay, great. So basically, ये बनाना था आपने, right? And ये, you know, इसके अपने ही कोई 3, 4, 5 नंबर हैं. If you've drawn these solutes, आपको मार्क मिल रहा है. आपने solvent level और baseline को आपने separate show किया, आपको मार्क मिल रहा है. आपने filter paper show किया, आपको मार्क मिल रहा है, right? And in explaining the concept, एक second. I hope it's not a bad day. Okay. So basically, how do you explain it? तो पहला तो आपने word use करना है chromatography का. अगर तो word आपने use किया है chromatography का, तो we give you the mark, क्योंकि आपने chromatography करनी है, right? So सर आपकी आवाज नहीं आ रही. Sir, we can't hear you. Sir, we can't hear you. And he can't hear us. Shh. do you guys will online? I hope you all can hear me now. I think that the Zoom was disconnected, so I'm starting it again. Okay, so basically I was saying that the chromatography experiment is actually performed, right? And then the spots of sample, like, I mean, sample means brown food coloring. So the spots of sample E150A and E155 are placed on the baseline. So the baseline, so we wrote that the filter paper is dipped in water such that the baseline is above the solvent level. और बताना है the baseline is drawn
with pencil. सर ये 3 फिल्टर पेपर अलग-अलग लगा The सकते हैं? solvent, एक second. So the सर ये solvent 3 moves up. फिल्टर पेपर अलग-अलग लगा सकते हैं? The filter paper and the positions of sample and E150A and E155 are compared. जारी बात है वो सैंपल भी ऊपर मूव करेगा, फिर E150A E155 ऊपर मूव करेंगे, तो जहां पे RF वैल्यू मैच करी कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगी. इसका मतलब है कि या तो E150A या फिर E155 will present the food coloring, right, found in those soft drinks. Sir, in the apparatus you've Basically drawn यहाँ पे जो mark है, right, Sir, we in will the be seeing apparatus that you've कि drawn क्या above. आपने उनकी जो आपके पोजीशंस है क्या वो कंपेयर की. 1 mark. क्या आपने बताया कि बेस लाइन आपने लेड पेंसिल से बनाई है. सेकंड मार्क. और क्या आपने बताया कि आपने स्पॉट्स लगाए सैंपल के और इसके ऑन द बेस लाइन, ये थर्ड मार्क. बाकी सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स हैं. So whenever you're writing an experiment regarding chromatography, these points, as such points, need to be mentioned. Please don't forget it. And I'm saying this in start, कि experimental design is a part of your syllabus you will see in your examinations in paper 2 and paper 4. I mean, in structured questions and ATP as well. इसलिए my last lecture, which happened yesterday, was actually very important. लेकिन वो बातें बार-बार repeat होंगी in the upcoming chapters too. Are you all clear? Yes, sir. Yes, sir, but I have a question. In the apparatus sir. you've drawn above, but I have a question. In the apparatus you've drawn above, how does the filter So paper guys, stay upright? everyone, we've done states of matter, we've done experimental techniques, and now the new chapter starts off, and that is atomic structure. I'm moving on now. All right. There we go. Excuse me, sir. Excuse me, sir. एक second. Shh, be silent. Yes, the people online, you have a question. Sir, can you please tilt your screen a bit back? Sir, can you please tilt your screen a bit back? Silent. पहले मैं सुनने दे क्योंकि आवाज यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो गई है. जी, please come again. Can you please tilt your screen a bit back? Can you please tilt your screen a bit back? Basically, I just wonder that कि एकदम वहाँ शिफ्ट हो क्यों जाता है. You can. इसका तो वॉल्यूम ऑन ही है. You should write in the chat. क्योंकि वो बेसिकली किधर नहीं, फिर वो इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी. नो ताहा, we cannot use 3 filter papers. आपको पता ही चलेगा ना बेसिकली कि आपने उनकी RF वैल्यूज मैच करनी, तो ये एक ही फिल्टर पेपर क्यों बनाना चाहिए. On one filter paper you have to place the sample and those statements, right? No, बेटा, मतलब कि I'm not ignoring gravity. Basically, it automatically means कि filter आपने hold किया हुआ किसी stand के साथ. वो बनाने की जरूरत नहीं होती. I can scroll above, right, if you're writing it. Once you've done, please let me know.
Okay, shall I go on? Cherry, everyone please guys now. Please silent. The new chapter starts off and that is atomic structure. इस वीक के एंड में आपका टेस्ट होगा स्टेट्स ऑफ मैटर एंड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स. इस वीक के एंड में राइट आप बस वैसे उसको एज अ वर्कशीट सॉल्व कर लीजिएगा. ओके नाउ गाइस एवरीवन प्लीज साइलेंट. एटॉमिक स्ट्रक्चर इट्स एटम. गाइस सो बेसिकली हम कहते हैं केमिस्ट्री में साइंस हम कहते हैं कि हर चीज एवरीथिंग इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ एटम्स. अगर मैं आपसे बात करूं ना 1000 साल पहले की तो 1000 years back right no one knew actually what atom was. इवन अगर आप मुझसे ये पूछे ना कि until 1970s और 80s तक हमने खाली एक्सपेरिमेंट्स किए हैं कि एटम क्या होता है. हमने सारी जो फॉर्म की है केमिस्ट्री it is all based on the experimental evidences. We had the Bohr's model, we had the Rutherford's model, we had the gold foil experiments, right? हमने किसी ने एटम नहीं देखा था. वो तो fortunately जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डेवलप की, SMPs डेवलप किए, एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक रेजोनेंस आई, राइट? तो हमने एटम को देखना शुरू किया, एनर्जी लेवल देखना शुरू किया. तो एक्सपेरिमेंट के 800 साल, वरना ये केमिस्ट्री उल्ट जाती. जिस तरह फिजिक्स में अगर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो जिस डायरेक्शन में होता है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती, हालांकि रियलिटी नहीं है, क्योंकि हम फिजिक्स उस वक्त तक बना चुके थे कन्वेंशनल मेथड के ऊपर कि इलेक्ट्रॉन फ्लो और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऑपोजिट, वरना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ग्रिप रूल तो एग्जिस्ट ना करते, फिजिक्स उलट जाती. लेकिन आज हम ये कहते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वहां पे कन्वेंशनल करंट नहीं होता, वो उसके ऑपोजिट होता है. हालांकि अगर आप मुझसे रियलिटी पूछें तो बेसिकली जहां इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है वही इलेक्ट्रिक फ्लो कर रही है. टेक्निकली उल्टी कैसे हो सकती है? लेकिन वो चूंकि हमारी साइंस सारी उल्ट साइंस, हम तो साइंस बना चुके हैं, तो वी कैन नॉट एक्चुअली डिसरप्ट द होल फिनोमेनन. तो हमने असम्पशन दे दी, हमने नाम दे दिया कन्वेंशनल मेथड. सेम गोस फॉर एटम. If everything is composed of atoms, it means फिर atom भी किसी चीज से बना है. Atom is actually composed of hundreds of particles, neutrons, protons, electrons, haplons, hydrons, hexalons, right? Hundreds of particles. Lekin still in O level and IGCSE, even in A level, we learn only 3 basic subatomic particles, and they are protons, neutrons, and electrons. यानी कि 99% एटम की सिग्निफिकेंस इन्हीं सबएटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर. Now, out of many experiments conducted, right, was actually the gold foil experiment. हम आपको सारे एक्सपेरिमेंट्स डिटेल से बता नहीं सकते कि what was the Bohr model, what was the Rutherford's model. No, we only talk about the gold foil experiments. गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में किया कि हमने गोल्ड फॉइल लिया. प्लीज वेरी केयरफुली. और हमने यहां पे एक अल्फा पार्टिकल का सोर्स लिया, a source of alpha particles. अच्छा, basically alpha particle is actually a positively charged particle, right? What we did was हमने alpha particle का source लिया और हमने alpha particle basically hit कर थे gold foil के ऊपर. हमने किया क्या, हमने हर जगह पे alpha particle का detector रख दिया everywhere. Even here as well. Surrounding the gold foil हमने alpha particle के detector रख दिए. इससे पहले बोर मॉडल आ चुका था, रदरफोर्ड मॉडल आ चुका था, right? It's had gold foil. What we did was हमने alpha particles hit किए gold foil के ऊपर, तो बड़ी strange observation आई. The strange observation was कि जितने डिटेक्टर रखे थे सबने अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट कर लिए.
This was quite a strange observation. जब ये गोल्ड फॉल एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तो आई थिंक इट वाज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस, क्योंकि वहां पे, क्योंकि इस वक्त तक हमने चार्जेस फिजिक्स में डिफाइन कर दिए थे. अब मुझे बताएं, अगर आप हिट कर रहे हैं अ पॉजिटिव पार्टिकल, मतलब है अंदर कोई चीज ऐसी है व्हिच हैज अ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि फिर इसका मतलब है अगर इसने डिफ्लेक्शन शो की, इसने डिफ्लेक्शन शो की और इसने डिफ्लेक्शन शो की, मतलब है कि यहां पे अल्फा पार्टिकल्स हो सकता है इस तरह डिफ्लेक्ट हो गए हो, और कुछ हो सकता है हेड ऑन कोलिजन की हो और इस तरह ही वापस आ गए. क्योंकि आप अल्फा पार्टिकल हिट कर रहे हैं और अल्फा पार्टिकल आपने हिट किया है, तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां दिखे, कुछ अल्फा पार्टिकल्स यहां दिखे, मतलब है कि अंदर कोई चीज है जिसमें चार्ज पॉजिटिव है, इसलिए तो रिपल्जन हुई है. अगर अंदर कोई चीज होती उसमें चार्ज नेगेटिव होता, फिर तो अल्फा पार्टिकल डिटेक्ट ही ना होता, फिर तो अंदर एब्जॉर्ब हो जाता, या इवन न्यूट्रल होता तो एब्जॉर्ब हो जाता. तो रदरफोर्ड ने कहा कि अंदर कोई चीज है जिसमें चार्ज पॉजिटिव है. लेटर एक और साइंटिस्ट आया साथ साथ, शार्टबर्ग, उसने कहा जी बेसिकली वो जो अंदर एक चीज है ना व्हिच हैज अ पॉजिटिव चार्ज, इट्स एक्चुअली कॉल्ड एज अ न्यूक्लियस. उसने कहा न्यूक्लियस हैज अ पॉजिटिव चार्ज. लेकिन ये रदरफोर्ड एक बात नहीं समझा पाया, सिर्फ उसने कहा कि माना कि इसने डिफ्लेक्शन शो कर दी, इसने शो कर दी डिटेक्शन, इसने शो कर दी, इसने क्यों की? Why this? This was further explained by a scientist. उसने कहा कि असल में स्टोरी इस तरह नहीं है, स्टोरी इस तरह है कि देखें जिस तरह आपका सोलर सिस्टम होता है, वैसे if you happen to learn science in the way which scientists learn ना, तो you would be able to actually connect macroscopic thing to microscopic things. Space एक macroscopic चीज है और atom एक microscopic चीज है, और exact replica है. जिस तरह हम कहते हैं ना कि स्पेस में सन है और सन के गिर्द आके प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, बाय द वे सन भी मूव करता है, राइट? लेकिन मुझे एक बात बताएं, सन है, प्लैनेट है, लेकिन बीच में एम्प्टी स्पेस भी तो है. इस तरह जिस तरह सोलर सिस्टम है, बिल्कुल इस तरह ही एटम है. यानी कि एट द सेंटर कोर इज द न्यूक्लियस, बाहर इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर, लेकिन बड़ी एम्प्टी स्पेस है. हो सकता है कुछ अल्फा पार्टिकल्स उस एम्प्टी स्पेस से निकल गए हो और जाके डिटेक्ट हो गए हो. तो इसने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर एक लार्ज एम्प्टी स्पेस है, जिस तरह सन के बाहर एक लार्ज एम्प्टी स्पेस है, लेकिन और फिर प्लैनेट्स भी हैं, और वो जो प्लैनेट है वो अपने अपने ऑर्बिट मूव कर रहा है. ऐसा नहीं है कि एक दिन अर्थ का दिल करे कि मैं मार्स के ऑर्बिट में निकल जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता. उसकी एनर्जी इज क्वांटाइज्ड, एक एनर्जी है, कॉन्स्टेंटली मूव करता जा रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव करता जा रहा है. Same goes for electrons. Electrons भी constantly move कर रहे हैं around the nucleus. Static नहीं है, it's dynamic. और ये जो orbit है इलेक्ट्रॉन का around the nucleus, it is called as a shell. Some students think that कि shell एक material surface है. Shell कोई material surface नहीं है. ऊपर solar system में जब प्लैनेट रिवॉल्व करता है सन के राउंड, के ऊपर कोई रोड बनी हुई है? नो, देयर इज एन ऑर्बिट, एक स्पेसिफाइड ऑर्बिट है, वो उसमें कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है. इसी तरह इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है न्यूक्लियस.